लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए क्योंकि देश के लिए बात गर्व की है, पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। प्रवीण श्रद्धा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बस इंतजार की घड़ियां कह सकते हैं खत्म होने वाली है, कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये जैसे जैसे घड़ी चल रही है ना माइनस में, वैसे वैसे इधर धक 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 हो रहा है, तेज। हम देख रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दर्शक जो हैं वो अब टकटकी लगाकर देख रहे होंगे कि कब स्प्लैश डाउन होगा। स्प्लैश डाउन की सीधी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और इस स्प्लैश डाउन के साथ में सबसे पहले तो ये अंतरिक्ष यात्री जो चारों गए हैं ये सुरक्षित बाहर आते हैं, इनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और उसके बाद आप देखिएगा जश्न का एक अलग जबरदस्त माहौल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो साइंस फैटर्निटी हो, चाहे वो परिवार के लोग हों, देश के लिहाज से हो, हर लिहाज से आपको हर जगह जश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अब जश्न का माहौल तो होगा ही और पहले से इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहाँ पर बड़े चैलेंजेस होते होंगे जो लोग वहाँ जाते हैं, जैसे शुभांशु ने भी बताया था जब प्रधानमंत्री से बात की थी। इसके अलावा वहाँ से लौटने के बाद अनूप और प्रवीण जी, लौटने के बाद बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती होगी, ये जब सोचते हैं तो इसको समझने की मैं कोशिश करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप बताएं कि जब लौटते होंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ ख्याल रखा जाता होगा वहाँ पर। श्रद्धा, मुझे जो जानकारी है मैं back between the core and the crew, but in the meantime, at least got some cool views of the crew almost back down here on Earth. Exactly right, and you know, making that kind of visual confirmation is such an important part of what we're tracking today. We're tracking a lot of very dynamic operations, and so being able to see what we see on the screen there is incredibly important for mission controllers. Dragon SpaceX comm check. तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें, बहुत कम वक्त बचा, चंद मिनट की कमी के बाद हम देखें, चंद मिनट के बाद ये स्प्लैश डाउन होगा, ये ड्रैगन यान, और उसके बाद शुभांशु और उसके उनके तीन सहयोगी उस कैप्सूल से बाहर आए। Dragon, we have you the same. Expect automated chute deployment. Dragon copies. Automated chute deploy. And great news, as you heard there, we got comms from the X4 crew. That's exactly what we're waiting for, and I love that you can hear the excitement in Peggy's voice too. Yeah. It's like she's done this before. Maybe a few times. A great live view on your screen inside of Dragon as they are re-entering the Earth's atmosphere. And we did hear confirmation that there will be the automatic drogue and parachute deployment coming up here shortly. And on your screen with that great live view. GPS converge. Expect nominal altitude for drogue chute deploy. Copy. Nominal GPS chute deploy. And we're going to hear a lot of comms back and forth throughout these last 5 minutes here as the Corps will be calling out their altitude as they're making their way down, as well as when the drogue parachutes deploy and the main parachutes deploy. And then as they get closer and closer to Earth, just keeping the crew updated with how close they are before splashdown so that they can expect that splashdown. Exactly right. Exactly right. And those are the things that crew that you're seeing there on the left side of your screen are following along with their onboard telemetry. And for you at home as well, you can see on your screens as well things like vehicle speed, vehicle altitude. All those are really important metrics that we're trying to understand as part of the visual confirmations, the audio communications or the verbal communications that we've gotten with crew. We're also getting vehicle communications and telemetry to all understand how we're looking as we lead up to these next 4 minutes before. And there you can see on your screen, the seats are rotating for the crew. This prepares them for that splashdown, so they do brace for drogue window. आखिरी के 4 मिनट 26-24 सेकंड जो बचे हैं, बेहद क्रूशियल वक्त और इंतजार किया जा रहा है। देखिए, तमाम दुनिया भर के लोग जो हैं अपनी घरों में बैठ के या तो टीवी स्क्रीन के सामने हैं। इसरो के लोग, देखिए शुभांशु के परिवार वाले उस स्कूल में जहां तैयारियां की गई हैं, जो स्पेस सेंटर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से तमाम चीजों को देखा जा रहा है। बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है और ये वक्त जो है बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। अभी तक सब कुछ बेहतर तरीके से शुभ वापसी की तैयारी शुभांशु की
अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया भाग्य विधाता भारत का। जी हां, शुभांशु की बड़ी जीत कह सकते हैं, देश के लिए बहुत बड़ी जीत। शुभांशु अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद अपने साथियों के साथ वापस लौट रहे हैं। हम काउंटडाउन भी आपको नीचे दिखा रहे हैं, 3 मिनट 35 सेकंड। जी हां, 35 सेकंड का वक्त बचा है। इसके बाद कैलिफोर्निया के तट पर वहां स्प्लैश डाउन होगा। देखिए तेजी से नीचे पैराशूट खुल गया है, पैराशूट खुला है। इसके बाद जो है और भी तस्वीर देखिए, 2 पैराशूट के बाद 2 पैराशूट और खुलेंगे, तब इसकी गति थोड़ी कम होगी और उसके बाद 40-45 जो स्पीड बताई जाती है किलोमीटर के हिसाब से, वैसे वो यहां समुद्र तट पर स्प्लैश डाउन होगा। ये तस्वीरें देखिए, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है, जो धड़कनें हैं वो तेज हो रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये जाबाज जो है अंतरिक्ष जीतकर, अंतरिक्ष नापकर वापस धरती पर लौट रहे हैं। और भारत का लाल शुभांशु भी इनमें मौजूद है, इनके साथ है और भारत के लाल ने अंतरिक्ष नापा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा भी मानेगी। अब देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर। पैराशूट खुल चुका है। On their return home is roughly 2.5 minutes out from splashdown, and our main chutes have deployed. Main chute descent rate nominal. 4 पैराशूट खुल चुके हैं। देखिए, यानी ये आखिरी मौका, बिल्कुल Descent rate nominal. अंतिम वक्त और किसी भी वक्त स्प्लैश डाउन होगा। आप समझिए, 4 पैराशूट खुलने का मतलब गति को बहुत धीमा करना होता है। उसके बाद जो है ये समुद्र तट पर स्प्लैश डाउन होगा और लगभग सारी प्रक्रिया पूरी होती नजर आ रही है। बहुत कम वक्त बचा है, बिल्कुल आखिरी किसी भी क्षण ये जाबाज जो है अंतरिक्ष के अनूप, जाबाज, इसको 2 तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। ये भी देखिए, एक तस्वीर ये देखी जा रही है जिसमें चारों पैराशूट खुल चुके हैं, तो एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि ड्रैगन जो शटल है उसके अंदर से बाहर की तस्वीर भी देखी जा रही है। और अब बस कुछ मिनटों का, बल्कि अभी बात करते करते ये शटल प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा और उसके साथ ये शानदार मिशन एक्सियम 4 यहां पर खत्म होगा। लेकिन एक्सियम 4 किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे ये पूरा शटल पृथ्वी की कक्षा में आया, एटमॉस्फेयर में आया और उसके बाद में जैसा विशेषज्ञों ने हमें बताया था 4 पैराशूट खुलने के साथ ही ये धीरे धीरे स्प्लैश डाउन की तरफ बढ़ता हुआ कुछ मिनटों में धरती पर आप देखेंगे शुभांशु शुक्ला और अन्य एस्ट्रोनॉमर्स को। बिल्कुल, तो अब बहुत कम समय रह गया है प्रवीण जी, और अब थोड़े ही देर में, बल्कि थोड़ी देर भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कुछ मिनटों में शुभांशु सहित चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो आ जाएंगे, धरती पर कदम रख लेंगे। लेकिन अब उसके बाद भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनको उतारा जाएगा बाहर। ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब अभी नासा तस्वीरें दिखाई रहा है, ये पल पल की अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अब कुछ ही क्षणों का समय रह गया है, कुछ ही क्षण रह गए हैं अब जब शुभांशु वापस धरती पर लौटने वाले हैं। बहुत कम समय, और उस कम समय के साथ जैसे जैसे काउंटडाउन चल रहा है वैसे वैसे धड़कनें भी सबकी बढ़ी हुई हैं और हर कोई इस समय प्रार्थना भी, क्योंकि बाकायदा पूजा पाठ प्रार्थनाओं का दौर चला है कि सकुशल शुभांशु की वापसी हो जाए, बल्कि चारों एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल वापसी हो जाए। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ वापस धरती पर शुभांशु आते हुए अब नजर भी आ रहे हैं। पैराशूट्स आपने देखे किस तरीके से, ये 2 और 4 पैराशूट्स आपको दिखाई दिए। कुछ देर में आप धरती पर कदम रखेंगे, बस धीरे 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 धीरे। ये तस्वीरें डॉक्टर राम श्रीवास्तव कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि लोगों को लगता है, ये बात सही है कि जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में ये प्रवेश करता है उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तेज आग के गोले में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसको इस तरह से कवर किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन स्प्लैश डाउन के मायने जैसा लोग समझते थे कि बहुत तेजी के साथ ये सागर में गिरेगा। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त, ये तस्वीरें हैं प्रशांत महासागर में ड्रैगन के पहुंचने की। चारों पैराशूट के साथ बहुत धीरे धीरे अब वो नीचे समंदर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि आप एक्सियम 4 के समापन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षित तरीके से लैंड करते हुए ड्रैगन अब एक्सियम 4 अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। और ये देखिए पैराशूट जैसे ही डाउन हुए हैं उसके बाद में स्पष्ट है कि अब ये ड्रैगन पहुंच चुका है सेफली। अब यहां से इन एस्ट्रोनॉमर्स को बाहर निकाला जाएगा। तो यानी कि सकुशल वापसी हो गई है, हम ये कह सकते हैं।
और जो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही थी, देखिए वो पैराशूट क्योंकि नीचे आ गया, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया, और अब ये शुभ वापसी जो थी वो हो चुकी है शुभांशु की। शुभांशु लौट रहे हैं और अब लौट चुके हैं। शुभांशु सहित लौट चुके हैं। जो वक्त था 3:01 का, ठीक उसी वक्त स्प्लैश डाउन हुआ। ये ऐतिहासिक घड़ी जिसका इंतजार ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया कर रहा था, और क्षितिज के बाहर अंतरिक्ष से लौटता हुआ ये सितारा अब अपने आकाश में फिर से चमकने को है। शुभांशु शुक्ला वो एक नाम, और ये दूसरी विंडोज जो आप देख रहे हैं, लखनऊ में क्या कुछ खास तैयारियां शुभांशु के माथा पे था। दुआओं का ये पूरा सिलसिला चलता रहा, मां की दुआएं भी थी, पूरे देश की दुआएं थी। और अब बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दूं, अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी हो गई है। स्प्लैश डाउन हो गया है, स्प्लैश डाउन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। वो तस्वीरें फर्स्ट विंडोज में, वही तस्वीरें प्रशांत महासागर, आपके जहन में 4 महीने पुरानी तस्वीरें भी एकदम से फ्रेश हो गई होंगी। अब से कुछ ही देर में यहां पर रेस्क्यू करने वाले शिप्स भी आपको नजर आएंगे, जो कि इस ड्रैगन को, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, माता पिता की आंखों में आंसू। रोहित देखिए कितना की भावुक पल है शुभांशु के माता पिता के लिए, चिंता का विषय भी होगा। जैसे ही घड़ी टिक टिक कर रही थी, धक धक हमारा दिल भी कर रहा था, लेकिन स्प्लैश डाउन बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद में जैसा आपने बताया, बोट्स पहुंच रही हैं ड्रैगन यानी इस यान के पास में, और यहां से सुरक्षित निकाला जाएगा इन एस्ट्रोनॉमर्स को। तालियों की गूंज के साथ स्वागत हो रहा है शुभांशु शुक्ला का। जैसे ही कैप्सूल समंदर की सतह को छूता है, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया और लगातार पूरा देश, दुआएं थी, आंखों में आंसू हैं, ये इमोशंस हैं। दूसरे विंडोज भी देखते रहिए। पहली तस्वीर स्प्लैश डाउन की है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा इस कैप्सूल का होगा, ड्रैगन का होगा, तो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ा जाएगा। हालांकि पल पल की निगाहें, मॉनिटरिंग लगातार इस कैप्सूल की भी की जा रही है। आसपास अब से कुछ ही मिनट्स बाद आप देखेंगे शिप्स आएंगे और वो इस ड्रैगन को यहां से सेफली इवैक्यूएट भी करेंगे। दोनों तस्वीरें आपके सामने, बड़ी कवरेज भारत एक्सप्रेस की, क्योंकि यह महज एक ऑपरेशन नहीं था, यह महज आप देखिए स्प्लैश डाउन नहीं है, यह विज्ञान, साहस और भारतीय प्रतिभा की भी जीत है। कैप्सूल समंदर की ये कैप्सूल जो है, ये दोनों तस्वीरें आप देखते रहिए किस तरीके का इमोशन है। पूरे देश में यही इमोशन है। थोड़ी देर बाद वो बड़ी तस्वीरें भी आएंगी, जब कैप्सूल को मौके से इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां पर शिप्स पहुंचेंगे इवैक्यूएट करने के लिए, और उन तस्वीरों पर भी सबकी निगाहें। लेकिन अब तक ऑपरेशन जिस तरीके से सेफली एग्जीक्यूट होना चाहिए था, अनडॉकिंग की प्रक्रिया से लेकर स्प्लैश डाउन तक, सारी चीजें अब तक बहुत और रोहित बहुत देखिए, अभी शानदार यहाँ पर माता पिता और परिवार के लोगों को मीडिया ने भी घेर लिया। इतना खुशी का और इतना भावुक करने वाला पल पूरे परिवार के लिए है। शुभांशु के पिता, उनकी बहन, सभी भावुक हैं इस वक्त, और हर कोई उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। लेकिन वो आप इमोशन से समझ सकते हैं प्रवीण जी, और आपके इमोशंस भी मैं कई देर से देख रहा हूं। मैं जानता हूं आप भी बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ रिएक्शन आता है, कोशिश करते हैं अगर कुछ सुन पाते हैं हम। जी हाँ, मैं जितना आपको सुन पाया, क्योंकि बड़ी हलचल है न्यूज़ रूम में। After accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before, and therefore, as I said, today indeed Bharat has found an ये तस्वीरें भी बड़ी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मौके पर पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रैगन स्प्लैश डाउन कर चुका है। वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई। रिएक्शंस का सिलसिला है, वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन ये जीत है भाई। दुआओं का सिलसिला लगातार जारी था, और रिएक्शन आप उन चेहरे पर भी देख सकते हैं। कुछ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित ये है कि अभी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही, पहले वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। हाँ, हमारी बेटी भी वहीं ह्यूस्टन में है, गई है। हाँ, बहुत हम मना रहे हैं कि भगवान खुश रहें, मत रहें, वो खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहे। अब उतरने वाले हैं ना, वापस आने वाले हैं। हाँ, चाची सासू शुभांशु की बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हम लोगों को। और कामना से उनकी शादी हुई है।
with us over here on the 17th of August. जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का। तो रिएक्शंस आप लगातार सुन रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो बता रहे हैं, वो ब्रीफ भी कर रहे थे इस पूरे मिशन को लेकर भारत की क्या कुछ उम्मीदें हैं। अब ये दो तस्वीरें केक काटकर वहां पर, क्योंकि सेफली स्प्लैश डाउन अब तक हो चुका है तो उसका सेलिब्रेशन है। ये तस्वीरें आप देखिए, केक काटकर शुभांशु के माता पिता का अभिनंदन यहां पर किया गया है। आप समझ सकते हैं जहन में एक तरफ पूरे देश के लिए जो बड़ा काम करके शुभांशु वापस आए हैं, आने वाले दिनों में गगनयान हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन आप समझिए एक माता पिता के इमोशंस क्या कुछ होंगे। 7 समुंदर पार की बात हम करते थे, लेकिन पृथ्वी से भी कोसों दूर स्पेस में वहां पर जो इतिहास रचकर बेटा वापस लौटा है, उसके बाद ये सेलिब्रेशंस की तस्वीर है। डॉक्टर प्रवीण तिवारी भी मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से साझा हो रहे हैं, रिएक्शन साझा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, मैं जानता हूं आपके अंदर भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है और वो सभी भारतीयों के अंदर है। पूरा भारत एक्सप्रेस, हमारी पूरी टीम इस वक्त बहुत एक्साइटेड है। वो कल देर रात से ही लगातार प्रिपेयर कर रही थी कि क्या कुछ दिखाना है, कैसे दर्शकों के आगे इन तस्वीरों को रखना है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्प्लैश डाउन जो हो गया है, जो आप पहली विंडोज देख रहे हैं, स्प्लैश डाउन हो चुका है सेफली। अनडॉकिंग की प्रक्रिया से लेकर स्प्लैश डाउन, जिस तरीके से जो चीजें होनी थी, अब आप देखेंगे वहां पर गहमा गहमी तेज है। वहां पर जो शिप्स हैं जो यहां से इस ड्रैगन कैप्सूल को अपने पास लेंगी, वो मौके पर पहुंच रही हैं। हर एक तस्दीक यहां पर किया जाएगा। हो सकता है इसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीधा मेडिकल परीक्षण के लिए चारों ही एस्ट्रोनॉट्स को। ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तस्वीर महज स्प्लैश डाउन तक सीमित नहीं है। ये तस्वीर है भारत की उम्मीदों का, ये तस्वीर है माँ बाप के दुआओं का, ये तस्वीर है उस स्ट्रगल का जो देश, एक तरफ देश जो करता आया है। स्पेस में भारत की पिछले 1 दशक में क्या धाक जमी है, 2 दशक में क्या धाक जमी है। और देखते हैं फिर कहते हैं फॉर श्योर। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये जो है बहुत अच्छा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? परिवार कमल भाई सूरज है। देखिए सब बहुत खुश है, पूरा देश सेलिब्रेशन के मूड में है, माता पिता भावुक है, देश भावुक है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का मतलब आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और मिशन पूरा हुआ, उसके लिए सबको हम आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद। आपकी आखिरी बात कल हुई थी, क्या कुछ उस समय बात हुई थी? अब तो पूरा मिशन कंप्लीट हो गया, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। धन्यवाद, और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना जो है इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा हमारा, पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब लैंडिंग हो बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी से आप बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। आंटी खुशी के आंसू हैं, खुशी के धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत बड़ा मिशन करके आया। करो ना, अभी वो तस्वीरें देखिए, स्प्लैश डाउन का इंतजार था, सारी चीजें अब तक सेफली एग्जीक्यूट हुई हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नजर नहीं आई है। लेकिन अब एक बार वो तस्वीर आ जाए
जो अब बिल्कुल आखिर की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें आप समझ गए। जैसे आपने देखा था कि जब इस ड्रैगन का दरवाजा खुलेगा, हैच खुलेगा, उसमें से चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा, तो वो रिएक्शन हर कोई देखना चाहता है कि सभी चारों के चारों एस्ट्रोनॉट सेफ हैं अंदर। इस बात की तस्दीक भी जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर होगा, और उसका इंतजार ही सब कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट तक का भी वक्त लग सकता है, जैसा जानकारी मेरे पास आ रही है। तो पहली विंडोज में भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो ड्रैगन इस वक्त प्रशांत महासागर की सतह पर है, वो अपने तय वक्त था 3:01 पर सेफली चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए, जहां पर पैराशूट्स को खुलना था, मेन पैराशूट्स को जहां पर खुलना था, जिन डायमेंशंस पर वो पैराशूट्स को खुलना था, वो खुला। अब वीडियो वॉल पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए मेरे हाथ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये रहा ड्रैगन, यानी ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें इस वक्त चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं। भारत की आन बान शान, हमारा देश का लाल शुभांशु। अभी यहां पर आप देखेंगे तो रेस्क्यू के कई अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि भारत में सुबह है, वहां पर बिल्कुल अंधेरा है। तो आप देखिए यहां पर जो टीमें हैं, जो बोट्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। स्पेशल गियर्स में हैं ये लोग, और इन्होंने गैजेट्स भी हैं इनके पास, नाइट विजन कैमरास भी है, क्योंकि पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है वॉर रूम से भी, जहां से देखा जा रहा है कि यहां पर कहीं से भी कोई भी 1% भी चीजें ऊपर नीचे ना हो, कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो कैप्सूल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, टॉर्चेस की लाइट में। यहां पर आप देखेंगे इंफ्रारेड, उनके माथे पर इंफ्रारेड कैमरास भी लगे हुए हैं। तो अभी वो देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज ये भी है, ये बात आप भी जानते हैं, स्मार्ट जनता है, आप इस बात को जानते हैं कि जब भारत की सतह पर ड्रैगन आया, जिस गति के साथ आया, जो गति थी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, और धीरे धीरे उस गति को कम किया। अभी इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, ये भी आपको बता दूं, एक एक करके। अभी मुझे यहां पर इन विजुअल्स में कम से कम 2 बोट्स, 2 शिप्स नजर आ रही है, 2 शिप्स नजर आ रही हैं। तो वो रिएक्शंस का सिलसिला भी लगातार जारी है। पूरा देश इमोशनल है, आप जानते हैं, यहां से, क्योंकि बड़ी तस्वीर अभी आनी है। वो तस्वीर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इसको कस्टडी में ले लिया जाएगा, सारी चीजों को बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके जाने से लेकर आने तक का जो वक्त बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल रोज जाते हैं, करते हैं, और आज भी करते, अब तो करते ही रहेंगे। ये जो पूरा वक्त था जो गुजरा है, वो किस तरीके से परिवार, अब थोड़ा सा मतलब वो तो रहते ही है, मन में रहता है कि क्या सकुशल हो जाए, एक चीज तो रहती है, तो वही चीज रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करेंगे। तो शुभांशु के मम्मी पापा का रिएक्शन आप सुन रहे हैं, उनकी मदर इन लॉ का रिएक्शन मैंने आपको सुनाया। 2 तस्वीरें, पहली एक तो रिएक्शन है, पूरे देश में इस वक्त यही रिएक्शन है, सब बहुत खुश हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट तस्वीरें ये मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्रशांत महासागर से सीधा लाइव तस्वीरें। बीच में आपको ड्रैगन नजर आ रहा होगा, ड्रैगन कैप्सूल, और उसके इर्द गिर्द पूरी परिक्रमा कर रही है। देखिए अभी जो रेस्क्यू जो शिप है, जो मेन शिप्स हैं, वो भी आएंगे। लगभग उन्हें 15 मिनट लग सकते हैं, 17 मिनट लग सकते हैं, 19 मिनट लग सकते हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देखिए, इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। ये जो शिप है, ये यहीं पर प्लांट था, ये मूवमेंट कर रहा है, आसपास पूरा कॉर्डन कर रहा है, ताकि यहां पर कोई दिक्कत ना हो। लखनऊ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में खासी तैयारियां की गई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब स्प्लैश डाउन हुआ, अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन तक सारी चीजें जिस तरीके से सोची गई, जिस प्लान में सोची गई, वैसी एग्जीक्यूट हुई। लेकिन जैसे ही स्प्लैश डाउन हुआ, मैं तो कह रहा हूं, देश की उम्मीदें, माता पिता की दुआएं, और देश का आने वाले वक्त में स्पेस में जिस तरीके से हम कह रहे हैं भारत का डंका, और पिछले 2 दशक में वो चीजें होती हुई नजर आई हैं। लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, यहीं पर शुभांशु के मम्मी पापा भी मौजूद, उनके रिलेटिव्स भी मौजूद, और अभी तो पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। यहां पर कैसा माहौल है, प्लीज मुझे बताइएगा।
जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल भावुक कर देने वाला माहौल है। जिस तरीके से स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हुई, आखिरी 5 मिनट में ये दृश्य बिल्कुल बदल गया। सारे जितने भी बच्चे थे सब खड़े हो गए, सबने हाथ में झंडा ले लिया। पूरा परिवार एक साथ भावुक होके उस दृश्य को देख रहा था। माता पिता भाई बहन सबकी आंखों में आंसू थे और लगातार भारत का झंडा वो हिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उस दृश्य को एकदम जी रहे थे। एक गर्व की अनुभूति हो रही थी और एक रियलाइजेशन भी था कि फाइनली उनका बेटा अब धरती पर आ चुका है, सुरक्षित आ चुका है। क्योंकि सुरक्षित आखिरी जो 10 मिनट थे बहुत क्रूशियल थे, उसको देखने के लिए सारे लोग भावुक हो चुके थे, उत्सुक थे और सबकी आंखों में लगातार आंसू दिख रहा था। जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही थी, जब तक वो पानी पे वो जहाज उतरा नहीं तब तक किसी को संतुष्ट नहीं हुआ। जैसे ही उतरा उसके बाद एक अलग ही दृश्य, सब एक दूसरे से गले मिले। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा हॉल भरा हुआ है। अभी भी उनके माता पिता कुछ देर पहले यहाँ थे और अभी केक काटा गया और जब लैंडिंग होगी केक काटा गया, उसके बाद वो लोग वहां से निकले। हालांकि उसके बाद मीडिया से बहुत कम इंटरेक्शन उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण, बहुत भावुकता होने के कारण बहुत बात नहीं करना चाहते थे वो, लेकिन केक काटा उन्होंने, खुशी मनाई, फिर वो यहाँ से अभी निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों का क्राउड लगातार यहाँ पे, और जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको दिखाया जा रहा है लगातार कि किस तरीके से वो जिस यान में आए थे उसको किस तरीके से अभी आप देख सकते हैं विजुअल्स में क्या कुछ किया जा रहा है। शिप से अभी ले जाया जाएगा और उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाएगा और प्रक्रिया अब इसके बाद शुरू होगी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं जीरो ग्रेविटी ऊपर होता है, आदमी अपना हाथ नहीं ला पाता। वो सबने देखा, सुनीता विलियम्स जी जब आई थी तब सारी चीजें लोगों ने देखी और वो तस्वीरें एक बार फिर से। कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। Mission lineage, right, allows crew members like तो रिएक्शंस का सिलसिला लगातार आ रहा है। गौरवान्वित है माता पिता, लगातार उनसे भी हम एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुना चुके हैं। भारत एक्सप्रेस उनके घर पर भी मौजूद था, उनसे भी बात की थी। 4 categories. One is of course related to the lives, and I also must point out over here, since you've given me this opportunity, that many of these kits, all these kits were indigenous, prepared within India, performed by Air India, and the other department in the ministry, Department of Biotechnology, provided kits. Then some of the kits provided by the Indian Institute of Sciences in Bengaluru, then some from IIT. And if you ask me what were the kind of experiments, I think more interestingly the life science experiment related to muscles, because the muscles tend to become dysfunctional or tend to suffer. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, लगातार वो ब्रीफ भी कर रहे हैं। इस तरह के ऑपरेशंस के बाद वो लगातार सामने आते हैं, चीजों को बताते हैं, देश के सामने क्लैरिटी रखते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी तस्वीरें यही है जो आपके सामने है। देखिए, जो चीजें एग्जीक्यूट की थी सेफली एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट कैसे हैं, शुभांशु और उनकी टीम अंदर कैसी है। इस मिशन में भी शुभांशु एज अ पायलट इस मिशन में शामिल किए गए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी चीजें जहन में। देखिए, बहुत सारे युवा अभी भारत एक्सप्रेस देख रहे होंगे जिनकी उम्र 41 साल नहीं होगी, 40 साल नहीं होगी। तो हम लगातार देखते हैं कि राकेश कुमार जी जब 41 साल पहले कहते हैं स्पेस से, कि जब इंदिरा जी उनसे पूछती है कैसा लग रहा है, भारत कैसा दिख रहा है, तो वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। तो हम लोगों ने तो इन चीजों को सिर्फ यूट्यूब पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन मैं माहौल समझ गया, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले तक मैं वो वीडियोस देख रहा था जब शुभांशु शुक्ला की, क्योंकि शुभांशु शुक्ला भी उतना ही एक्साइटेड, वो बता रहे थे आज भी स्पेस से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये तस्वीरें जो आपके सामने आई, इंपॉर्टेंट तस्वीरें। अब आप देखेंगे धीरे धीरे लाइट्स भी बढ़ गई हैं, धीरे धीरे मौके पर गहमा गहमी काफी बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं प्रशांत महासागर की, कैलिफोर्निया की, जहां पर स्प्लैश डाउन हुआ है ड्रैगन का। इसके अंदर कुछ देर तक ऐसे ही रखा जाता है। कई बार क्या होता है, आप ये भी जानते हैं कि हीट रेसिस्टेंट अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत तेज गति के साथ जब ड्रैगन पृथ्वी की सतह में आया तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक चैलेंजेस को पार पाने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी कई सारी चीजें जब लूप होल्स आई थी, आप जानते हैं XCM-4 भी बार बार इसका डिले हो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि धरती पर वापस लौट चुके हैं शुभांशु शुक्ला। स्प्लैश डाउन की वो तस्वीरें लाइव मैंने आपको दिखाई, लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज हर एक छोटा बच्चा आसमान की तरफ देख रहा है और वो अपने ख्वाब अपनी आंखों में समा रहा है। ये महज एक स्प्लैश डाउन, देखिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। स्पेस में पिछले कुछ वक्त में देश ने, दुनिया ने बहुत सारी चीजें अर्जित की हैं, लेकिन There you could see what we call the Dragon Nest
when the spacecraft is lifted up out of the water, it's going to seat into that ring that you see there. अब आप देखिए वहां पर जो बड़ी शिप है, मुझे नजर आ रहा है इन विजुअल्स को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक बड़ी शिप भी वहां पर मौजूद है। और अब वहां पर जो इस पूरे मिशन को, यानी अब यहां से ये जो स्पेस मुझे बीच में नजर आ रहा है, ये ड्रैगन के रखने के लिए बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है, और उसके बाद उसके हेड को खोला जाएगा। पहले सेफली ड्रैगन को यहां पर रखा जाएगा, प्लांट किया जाएगा। उसके लिए जो तैयारियां हैं, देखिए इन तैयारियों में 15 मिनट भी लग सकते हैं, 17 मिनट भी लग सकते हैं, 18 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन ये बीच का जो स्पेस मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहीं पर ड्रैगन कैप्सूल को रखा जाएगा। तो पूरा देश इस वक्त इस कामयाबी पर सेलिब्रेट कर रहा है। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़ी उपलब्धि के लिए ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट प्रधानमंत्री ने जो साझा किया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले, मैं ट्वीट रख रहा हूं प्रधानमंत्री का आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर आप देख पाए तो मैं अपने फोन से पढ़ देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, आई ज्वाइन द नेशन इन वेलकमिंग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एज ही रिटर्न्स टू अर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को वेलकम कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, ये बड़ी उपलब्धि है। ये मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहा हूं। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं आपको भी बता रहा था, प्रधानमंत्री से भी संवाद किया था। बड़ी ब्रेकिंग यही है, प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। आई ज्वाइन द नेशन इन वेलकमिंग ग्रुप कैप्टन Subhanshu Shukla as he returns to Earth from his historic mission to space as India's first astronaut। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो ISS गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। प्रधानमंत्री ने आगे क्या लिखा है? He has inspired a billion dreams through his dedication, courage and pioneering spirit. It marks another milestone towards our human space flight mission गगनयान। आप समझ गए होंगे देश की जनता स्मार्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत कर दिया है। प्रधानमंत्री यह भी बता रहे हैं कि एक दो नहीं, मिलियंस बिलियंस आंखों में खाब दिए हैं। किसने? वो एक नाम, वो एक सितारा जो अब तक स्पेस में था, अब वापस पृथ्वी पर आ चुका है, शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री यह भी बताते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन है। आप जानते हैं, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है कि स्पेस में भारत जो काम कर रहा है बहुत शानदार है। ये विजुअल्स भी देखते रहिए। पूरे देश में इस वक्त सेलिब्रेशंस का माहौल है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो, आपको याद होगा, बात भी की थी। प्रधानमंत्री ने पूछा था कि आप हलवा लेकर गए हैं, अपने साथियों को हलवा टेस्ट कराया कि नहीं करवाया। और उसके बाद बहुत इमोशनल थे शुभांशु भी। उन्होंने अपनी मम्मा से भी, अपनी माताजी से भी फोन पर बात की थी, वीडियो कॉल किया था उन्होंने। और ये इमोशंस जो आप देख रहे हैं ना, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यकीन मानिए कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनको डिस्क्राइब करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। एक वक्त पर भारत को लेकर वेस्टर्न किस सोच के साथ जाते थे, वो कभी हमारे साइंटिस्ट के हाथ में साइकिल दिखाते थे, कभी गाय दिखाते थे। लेकिन आज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर स्पेस में भारत का क्या स्थान है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, दूसरी विंडोज लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर शुभांशु के माता पिता हैं। अभी हर कोई उन तस्वीरों का इंतजार कर रहा है। अभी तक सारी चीजें बहुत अच्छी गई, अभी तक सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रही हैं, लेकिन अब इंतजार रहेगा। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी ड्रैगन एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ड्रैगन कैप्सूल जो आपके सामने है, कैलिफोर्निया से भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अभी वहां पर जो अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम है, वो आप देखिए धीरे धीरे कैप्सूल को खींच रहे हैं इस बड़े शिप की तरफ। और बीच में जो गोल स्पेस आपको नजर आ रहा है, यहीं पर कैप्सूल को प्लांट किया जाएगा। फिर इसमें एक हैच है, गेट आप समझ लीजिए, उसको खींचा जाएगा और एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। यह भी जानकारी है। फिर शायद यहां से डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा, उनको सीधा उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। क्या असर रहा, सब तमाम चीजें वो आप जानते हैं। लेकिन अभी इंतजार है, सारी चीजें बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रही हैं। अब इंतजार है कि वो हैच खुले, वो गेट खुले, तो शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम पूरी तरीके से सेफ हो। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ है। Like it's not happening very fast, but there are a lot of steps that each of these crew members are responsible for.
स्वदेश मिशंस को प्लान करने में और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर सीखा, क्या एक्सपेरिमेंट करें, उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और आगे की बातें अभी बहुत लंबी है स्पेस स्टेशन और उन जैसी, पर डेफिनेटली जिस तरह से ग्रो कर रहा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो दिन भी दूर नहीं है। वो दिन भी दूर नहीं है। तमाम सारे ड्रीम्स और ड्रीम को सच करने की बात प्रेरणा जी ने कही है। आप युवा हैं, आप लोग किस तरह के सपने देख रहे हैं शुभांशु के स्पेस जर्नी को लेकर? शुभांशु जी सबके लिए इंस्पिरेशन है, हमारे यूथ के लिए, एंड इट प्रूव्स दैट रियल मिरेकल्स साइंस कैन डू रियल मिरेकल्स। एंड जिस तरह से हर कोई यहाँ पे बैठा था, इतना एक्साइटेड था। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस रखता रहेगा। अब देखिए पूरी तरीके से ड्रैगन कैप्सूल को खींचा जा रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें मुझे लगता है, ड्रैगन को वहां से खींचा जा रहा है और जो बीच में मैं बार बार बता रहा हूं जो गोल स्पेस बनाया गया है, ये ड्रैगन के लिए ही बनाया गया है, इस कैप्सूल के लिए ही बनाया गया है। अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर लगातार एक बहुत शानदार डिग्निफाइड पैनल बना हुआ है। रचना अग्रवाल जी है मेरे साथ, स्पेस साइंटिस्ट है, अमेरिका से लाइव है। सुषमा यादव जी है, पूर्व रिसर्चर ISRO इसरो से, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व स्पेस साइंटिस्ट। मैं डॉक्टर राम आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं देख रहा था, सुन रहा था आपको, आपका वास्ट एक्सपीरियंस, और ये तस्वीरें भी दर्शकों को देखिए। अब जो ड्रैगन कैप्सूल है उसको इस बोर्ड पर, इस शिप पर रखा जा रहा है। अब ज्यादा देर वो तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें स्क्रीन पर रहेंगी। डॉक्टर राम प्लीज आप रिएक्ट कीजिए। मैं देख रहा था, मैं चाह रहा था कि आप रिएक्ट करें। स्प्लैश डाउन के बाद क्या रिएक्शन आया आपके मन में? मैं जाऊंगा अपने गेस्ट के पास, लेकिन अब ये तस्वीरें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहलू सबसे इंपॉर्टेंट है। सबकी आंखें दीदार करना चाह रही है शुभांशु का और उनकी टीम का। चारों एस्ट्रोनॉट्स अंदर सेफ हो, यही प्रार्थनाएं चल रही है, प्रार्थनाओं का दौर भी यही है। और अभी आप देख रहे होंगे, अभी सेलिब्रेशन तो है पूरे देश में, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी है। वो कमी खत्म हो जाएगी जब ये हैच आप देख रहे हैं सामने, जो गेट है, इस गेट को जब खोला जाएगा, इस हैच को जब खोला जाएगा, दिस इज द बिग पिक्चर ऑफ टुडे। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, जिस पर न सिर्फ देश की तो निगाहें हैं ही, दुनिया की निगाहें। पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए इसी ड्रैगन की तरफ देख रहा है कि जल्द से जल्द ये दरवाजे खुले, जल्द से जल्द ये दरवाजा खुले तो हमें दीदार हो जाए शुभांशु शुक्ला का। अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त अब नहीं है। सारी चीजें पिक्चर परफेक्ट रही हैं, फ्रॉम अनडॉकिंग टू स्प्लैश डाउन, एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट। और अब यहां से भी चीजें बिल्कुल ठीक रहें, यहां से भी चीजें बिल्कुल अच्छी रहें। फिंगर क्रॉस्ड। पूरे देश में इस वक्त आप जानते हैं, ये सबसे स्पेस में जाना उसकी जटिलताएं अलग होंगी, लेकिन वापस आना उसमें जटिलताएं शायद और ज्यादा बढ़ जाती होंगी। इस पर भी मैं एक्सपर्ट से रिएक्शन जरूर लूंगा। लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए, ये आज की, अब की, इस दशक की सबसे बड़ी तस्वीर है, खासकर भारत के लिए। भारत आने वाले दिनों में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैंने आपको बताया, उन्होंने भी बताया कि बिलियंस के आंखों में एक बड़ा ख्वाब आज शुभांशु देख रहे हैं। और वो आंखें ख्वाब तो देख रही हैं, लेकिन वो आंखें इस वक्त उम्मीदों भरी निगाहों से देख रही हैं। अब देखिए, किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट, किसी भी सेकंड ये हैच खुलेगा, ये गेट खुलेगा। अब वहां पर देखिए, ये आखिरी और सबसे बड़ी तस्वीर है। ऑल इज वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब तक हमने काउंटडाउन किया कि स्प्लैश डाउन सेफली हो, वो बिल्कुल सेफली हुआ, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं फिंगर्स क्रॉस्ड। यहां से अब ये हैच खोलने का, ये गेट खोलने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। पूरा देश, पूरी दुनिया, ये बड़ी चीजें, पूरा देश, पूरी दुनिया टकटकी निगाहों से इस वक्त इसी ड्रैगन को देख रही है, ड्रैगन कैप्सूल को देख रहे हैं। अंदर सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, एक बार तस्वीरें देख ले, उसके बाद जो सेलिब्रेशन अभी 99% है, 98% है, वो पूरा 100%। और भारत तो है ही सेलिब्रेशंस का देश। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित करके भारत का लाल शुभांशु शुक्ला वापस आसमान से पृथ्वी पर आया, और अब वो तस्वीरें, कुछ ही क्षण, कुछ ही मोमेंट्स जिसका इंतजार, मैं तो कह रहा हूं जो लोग अभी घर से देख रहे हैं, वो बोले जय हिंद, वो बोले जय विज्ञान, वो प्रार्थना करें कि अंदर सारी चीजें वैसी हो जैसी अब तक नजर आई हैं, सारी चीजें प्लान्स के साथ अब तक बिल्कुल सेफली एग्जीक्यूट हो। अब ये कुछ ही सेकंड्स की बात है, ये सीधी तस्वीरें कैलिफोर्निया से, लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है, इसलिए भारत एक्सप्रेस पर है। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, ये गहमा गहमी आसपास आप समझ सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम हो सकता है। ये गेट कितनी देर में खुलता है, अंदर से शुभांशु के क्या रिएक्शन आते हैं। और अब देखिए, ये तस्वीरें देखिए, अब जो वहां पर
अधिकारी हैं, वहां पर जो टीम है, जो उस पूरे कैप्सूल का रखरखाव उसको उसकी पॉइंट पर प्लांट कर चुके हैं, अब हैच खोलने में कुछ ही सेकंड्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ मिनट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब सारी चीजें यही इंडिकेट कर रही हैं कि यह दरवाजा किसी भी क्षण खुलेगा, यह हैच किसी भी क्षण खुल जाएगा और वो ख्वाब भी खुल जाएगा। अभी तक सबने फिंगर क्रॉस रखी हुई हैं कि सारी चीजें सेफ हो, सारी चीजें अच्छी हो, शुभांशु सेफली हमें नजर आ जाए, एक बार स्माइल कर दे, एक बार वेव कर दे, उसके बाद हम अपना सेलिब्रेशन आगे बढ़ाएंगे। ये लाइव तस्वीरें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, इसलिए भारत एक्सप्रेस पर XCM 4 को लेकर, शुभांशु की वापसी को लेकर सबसे बड़ी कवरेज आपने देखी होगी। लगातार पिछले 4 घंटों से भारत एक्सप्रेस पर ना सिर्फ डिग्निफाइड पैनल है, बल्कि पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब वो तस्वीरें कुछ ही क्षणों में आपके सामने, सारी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप और मैं जो देख रहे हैं और जो टीम वहां पर मौजूद है, जो वहां पर महसूस कर रही है, उसमें कुछ फर्क हो सकता है। ऐसे में हम तो चाहते हैं कि तुरंत गेट खोल लिया जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जिसका इंतजार किया जा रहा होगा। इसलिए जो कैप्सूल को कुछ देर तक प्रशांत महासागर में ही वो ऊपर ही फ्लोट करता रहा, सतह पर रहा। अब सारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। फाइनल मोमेंट्स कभी भी, फाइनल मोमेंट्स किसी भी क्षण, कुछ ही देर में तैयारियां यहां पर लगभग मुझे नजर आ रहा है बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आप जानते हैं दूसरी भी तैयारी है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे ही आदेश मिलता है हैच को खोलने का, यहां पर जो अधिकारी हैं वो अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर चुके हैं। आप देखिए 90 to 95% यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ इस हैच को खोलना है। लेकिन उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, जिस वजह से पूरी तैयारी पहले आसपास की जा रही है। मैं ये विजुअल्स आप देखते रहिए, ये बड़ी तस्वीर है। अभी अगर आप देखेंगे तो अधिकारी वहां पर मौजूद है, गेट ऊपर है, गेट नीचे, हैच आप देखेंगे नीचे है। वहां पर आपको एक लीवर नजर आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, व्हाइट कलर का, येलो कलर का और ग्रे कलर का। ग्रे कलर का जो हैच है उसी को खोला जाएगा, वो हैंडल वहां पर है, वो लीवर वहां पर है, उसको खींचा जाएगा। लेकिन सारे फैक्टर्स को, जब सारे फैक्टर्स पर 100% सेटिस्फाइड ये टीम हो जाएगी, तभी ये चीजें, तभी ये हैच खोला जाएगा, ये गेट खोला जाएगा। अब देखिए, अब तक तो हमने 18 दिनों का इंतजार तो किया ही ना, 18 दिनों का इंतजार किया। अब अगर 18 मिनट के लिए मैं कहूं तो आप कहेंगे नहीं नहीं रोहित, बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं वो तस्वीरें जिस आतुरता के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप देखना चाह रहे हैं, वही एक्साइटमेंट भारत एक्सप्रेस में भी है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये गेट खुले, एक बार हमारे शुभांशु स्माइल करे, वेव कर पाए तो वेव करें, लेकिन गेट खुलने के बाद, हैच खुलने के बाद ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार। मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, मेरे साथ एक बहुत ही डिग्निफाइड पैनल है। रचना अग्रवाल, सुषमा यादव, श्रीराम श्रीवास्तव और प्रोफेसर संजय चमोली जी मेरे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। चमोली सर, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले, मैंने तो इतना बोल दिया, मेरे अंदर इमोशंस भी हैं, एंथुसियाज्म भी है, जो कि पूरे भारत में है। आई एम श्योर वो आपके अंदर भी होंगे, लेकिन आप इसकी टेक्निकल चीजों को भी हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे कि कितनी देर और। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, इस समय भावात्मक होना स्वाभाविक है। हर भारतीय इस समय भावात्मक हो रखा है, क्योंकि ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और इसमें जो मिशन जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो खोज हैं, वो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत का महत्वपूर्ण, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि जब भारत ने अपना इंडिजीनियस, यानी अपना जो स्वदेशी चंद्रयान भेजा था, तो उसका टोटल बजट जो था वो 700 करोड़ था। 700 करोड़ में भारत जो है वो चंद्रयान को स्पेस में भेजने का काम सफल हुआ था। ठीक है। और इस पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि भारत का अपना मिशन नहीं है, ये स्पेस एक्स कंपनी का मिशन है, जो कि नासा से जो है इसको मतलब जो है टेक ऑफ करा था इसने। इसमें भी भारतीय स्पेस एजेंसी ने 550 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। बिल्कुल। तो अब आप ये लगाइए कि कहाँ चंद्रयान का 700 करोड़ का बजट और इसका अकेला 550 करोड़ का बजट, ये हमको ये दर्शाता है कि भारत के लिए यह अभियान कितना महत्वपूर्ण था। भारत के लिए अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, और लगातार मैं तो देखता हूँ कई हॉलीवुड की फिल्मों से कम हमारा प्रोजेक्ट पैसों का रहा, और हम इफेक्टिव भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे साथ डॉक्टर राम भी हैं। डॉक्टर राम, प्लीज आप रिएक्ट कीजिएगा। मैं तो यही चाह रहा हूं, देश यही चाह रहा है कि भगवान राम की कृपा जल्द से जल्द हो और ये हैच जल्दी से खुले और हमें शुभांशु और उनकी टीम स्माइल करते हुए नजर आए। व्हाट्स योर रिएक्शन सर? देखिए, हैच
खोलने में अभी करीब 5-6 मिनट लगने वाला है जी। क्योंकि इसकी अपनी प्रतिक्रिया होता है, अपना प्रोटोकॉल होता है जी। समुद्र में से उसको निकालकर ऊपर रखा जाता है। भीतर के जो सिग्नल्स आएंगे, मॉनिटरिंग होगी, उनके जो अभी सीट बेल्ट वगैरह हैं उन सबको खोला जाएगा, फिर एक एक को बाहर निकाला जाएगा। इट टेक्स इट्स ओन टाइम, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुका है और उसको प्रिक्योर कर लिया है। और रहा सवाल ये इतनी देर क्यों लग रही है, देर लगना आवश्यक है इसलिए कि अंदर जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सब पैरामीटर्स को कम्युनिकेट करेंगे और जो कंट्रोल सेंटर है वहां से उनके फाइनल सिग्नल आएगा, तब इनको खोला जाएगा। ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी देशवासी इस यात्रा को ये मानकर चल रहे हैं कि इसका पूरा लाभ जो है, देखिए अब वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने उसको। बिल्कुल सर। अब राम सर, लगातार आप जब कह रहे हैं तो वो ड्रैगन को आगे खींचा जा चुका है और अभी भी, जैसे मैं कह रहा था कि टेम्परेचर एक बड़ा पैरामीटर हो सकता है, अभी भी पानी की बौछारें की जा रही हैं ड्रैगन के ऊपर। निश्चित रूप से, क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है, 1600 डिग्री टेम्परेचर ऊपर था। नीचे आते आते जब वो आपके यूं मान के चलिए कि 64,000 फीट पर था, तब उस पर 2 उसके पैराशूट खुले थे। 6,000 फीट पर आकर उसके 4 पैराशूट खोले। लेकिन ये सब प्रोसेस आप देखिए, उसको खोलने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ, वहां पर लैडर लगाई जा चुकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वही तस्वीरें मैं भी देख पा रहा हूँ डॉक्टर राम। और लगातार मैं तो कह रहा था, हर कोई कह रहा है, भगवान राम से अर्जी लगा रहा है कि सारी चीजें ठीक हो। लैडर्स पे चढ़े हैं और बिल्कुल गेट खुला है क्या? बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। ऊपर का लॉक उन्होंने बाहर का खोल दिया है। अब उस फाटक को खींचने वाले हैं। आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये सब काम होगा और निश्चित रूप से उसका टेम्परेचर जो है सामान्य टेम्परेचर तक आ चुका है। आप पैरामीटर्स का भी जिक्र कर रहे थे, यानी अंदर से भी सिग्नल्स पॉजिटिव ही होंगे, तभी इस प्रक्रिया को इतनी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ रचना अग्रवाल भी हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से लाइव है। मैम, योर रिएक्शन आफ्टर स्प्लैश डाउन प्लीज। हाँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। आगे जो गगनयान के प्रोग्राम होंगे और भी बहुत जो इसरो ने प्लान किए हैं, उन सब के लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। इस मिशन का सक्सेसफुल होना काफी इम्पोर्टेंट था। अभी कितना % सक्सेसफुल मानूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि बस अब आखिरी रह गए। 90 to 95% हम लोग तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार ये हैच खुल जाए, ये गेट खुल जाए, अंदर से शुभांशु स्माइल करते हुए नजर आ जाए तो 100% हो जाए। जी, सुषमा यादव जी, जी मिशन तो सक्सेसफुल है। प्लीज रिएक्ट रचना जी, प्लीज रिएक्ट प्लीज। हाँ जी, मैं तो 99% सक्सेसफुल मानूंगी। ओके। अब आगे के तो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो चलेंगे, वो साइंस अपना टाइम लेगा। रिसर्च होगी उस पे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स ले गए थे माइक्रोग्रेविटी में, उस पे जो भी आगे रिसर्च होगी वो भी बहुत एक्साइटिंग होगी। तो वो भी मिशन का ही पार्ट होगा फिर। परफेक्ट, सब एक्साइटेड हैं। सुषमा जी भी मेरे साथ हैं। सुषमा यादव जी पूर्व रिसर्चर हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सुषमा जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। इसरो के लिए तो जितने अच्छे शब्द कहे जाए कम ही है। मैं क्या कह दूं, कुछ तारीफ मैं इसरो की कर दूं, ये तो ये हो जाएगा कि मैं सूरज को दीप दिखाने का काम कर रहा हूं। आपने भी उसमें काम किया है, आप लगातार उस दिशा में भी एनालिसिस कर ही रही हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं स्प्लैश डाउन के बाद में रिएक्शन, गेट खुल चुका है सुषमा जी, गेट खुल चुका है। ये अपडेट भी मैं दर्शकों को दे रहा हूं, गेट खुला है, इस हैच को खींचा जा रहा है और अब एक एक करके ये देखिए, एक एक करके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये आप देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 अधिकारी तो मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं, 7 टीम मेंबर्स तो यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए और भी टीम होगी जो पीछे से भी बिल्कुल तैयार होगी, पीछे से भी बैकअप तैयार दे रही होगी। ये गेट खुल चुका है और अब एक एक करके बाहर आना एस्ट्रोनॉट्स का वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सुषमा जी प्लीज आप रिएक्ट कीजिएगा, दर्शक ये तस्वीर देखते रहें। सुषमा जी प्लीज। बहुत ही भावुक क्षण है ये, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली बिकॉज मैंने इसरो में काम किया है काफी टाइम और बहुत ही उत्साहित हूँ ये सारे प्रोग्रेस को देखकर। भारत काफी तेजी से अंतरिक्ष में काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी है ना लॉन्च कर रहा है और काफी सारी सक्सेसफुल उपलब्धियां भी उसने हासिल की हैं। तो देख करके काफी एक्साइटमेंट होता है, काफी खुशी होती है। और क्योंकि वो लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और लैंडिंग भी बहुत सक्सेसफुली हुई है और हम
कंटिन्यूअसली सुधांशु जी से कनेक्शन में थे और उन्होंने अपने काफी सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन होगा और हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। ऑब्वियसली बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। चमोली सर प्लीज आप भी रिएक्ट कर दीजिए। ये तस्वीरें आ गई हैं, गेट खुल चुका है, हैच खुल चुका है और किसी भी वक्त तो तस्वीरें आएंगी, तो प्लीज आप बता दीजिए अभी क्या कुछ घटनाक्रम स्क्रीन पर चल रहा है। हाँ, अभी जैसे गेट खुला है, गेट खुलने के बाद सब जांच होंगी अंदर जाकर के, यहाँ से बाहर से एक दो अधिकारी जाकर के अभी अंदर जाकर के उनकी जांच करेंगे। उसके बाद एक मेडिकल टीम भेजी जाएगी, जो मेडिकल टीम उनके पैरामीटर्स चेक करेगी कि फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनके, वो सारे के सारे मेडिकल पैरामीटर्स वो सारे के सारे ठीक है कि नहीं है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे तब जाकर के उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। और मेरे ख्याल से प्रक्रिया अभी जो आप कह रहे थे कि अधिकारी अंदर जाएंगे, एक अधिकारी अंदर से ही शायद बाहर निकले। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं आज की, ये इस दशक की बड़ी तस्वीरें। और भारत जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है स्पेस में, दुनिया लोहा मान रही है। अब शुभांशु शुक्ला की वापसी तो हो ही गई है, कुछ ही क्षण की बात है। गहमा गहमी बता रही है कि ज्यादा वक्त नहीं है, गेट वो खुल चुका है, हैच वो खुल चुका है। फोटोज आप देखिए अंदर, यानी सारी चीजें ठीक है। मैं इंडिकेशन से मान लूं ना चमोली सर, क्योंकि आप देखेंगे तो अंदर वो कैमरामैन भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं अभी, बिल्कुल पॉजिटिव हैं। और ये हर मोमेंट की, उनके बाहर निकलने की हर मोमेंट की जो है वो तस्वीर खींची जाएगी, क्योंकि वो आने वाले दिन में ये एक एविडेंस के तौर पर कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्या 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 प्रक्रिया होती है, एक एक चीज उसके लिए काउंट करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मोमेंट पे जो है फोटो खींची जा रही है। आई वॉन्ट डॉक्टर राम टू रिएक्ट। डॉक्टर राम प्लीज, मैं तो बार बार कह रहा हूं भगवान राम से सब अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन सर जिस तरीके से वहां पर फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, इंडिकेशंस पॉजिटिव है ना डॉक्टर राम? अब पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरह का जो है कई बार प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है जी। हर बार जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। इट्स ए वेरी सेफ लैंडिंग, नो प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप। अभी आप देखिए शुभम आ जाएंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और निश्चित रूप से उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन में रखना इसलिए जरूरी होता है, अब इसको खोलने में क्यों देरी हुई, इसलिए हुई कि जब ये गर्म होकर इसमें जो पेंटिंग था वो उसको साफ करना पड़ा, क्यों हाई टेम्परेचर पे वो जम गया था, और इसके बाद उसकी सील्डिंग निकाली गई। और अब जो है अंदर घुसकर उनको जो सीट बेल्ट से वगैरह बांध रखा है उनके सहित उठाकर लाएंगे। देखिए आप किस तरह से बाहर आते हैं, ये अपने आप में एक प्रोसेस है और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हमको भी जब अपना गगनयान में यात्री भेजेंगे तब उनको इसी तरह से लेकर आएंगे। और रहा सवाल ये कि इसके बाद इनको क्वारंटाइन में इसलिए रखा जाएगा कि स्पेस में जो एक्सपोजर होता है, सोलर विंड का होता है, उसमें बहुत सारे गामा रेडिएशंस भी आते हैं, एक्सरेज भी आते हैं। तो खास करके विशेषकर इनकी ये तस्वीरें आ चुकी है, पहली तस्वीरें देख लीजिए चारों एस्ट्रोनॉट्स की, ये बड़ी तस्वीरें आ चुकी है। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव कवरेज तो कर ही रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, वो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, अभी तक इंडिकेशंस बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों एस्ट्रोनॉट्स नजर भी आए। चमोली सर, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? और ये मेडिकल टीम जो है, मेडिकल टीम के मेंबर हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, उनके पैरामीटर्स देख रहे हैं, और उसके बाद जब ये संतुष्ट हो जाएंगे तब उसके बाद उनको एक एक करके उनका लैच खोल करके तब उनको निकाला जाएगा बाहर। ठीक है। अच्छा, जिस चीज का जिक्र भी डॉक्टर राम कर रहे थे कि क्यों गेट खोलने में देरी हुई, मैं चाहता हूं एक बार आप भी उस पर मुझे प्लीज बता दें। हाँ, जब बाहर से स्पेसक्राफ्ट आता है वो अलग अलग टेम्परेचर के वेरिएशन से होकर के आता है। जी। तो कई चीजें उसमें ऐसी होती हैं जिसके कारण की जो है लॉक कुछ समय के लिए जाम हो जाता है जी। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे करके उस टेम्परेचर पे लाना पड़ता है। टेम्परेचर डाउन करने की जो आपने प्रक्रिया देखी थी उसमें वो टेम्परेचर डाउन इसीलिए करना पड़ता है, उसके बाद तब जाकर के वो ओपन होते हैं लैचेस। ठीक है, सुषमा जी भी मेरे साथ है। सुषमा जी, अब तक सारे इंडिकेशन बहुत पॉजिटिव है, वो जो पहली झलक आई वो भी भारत एक्सप्रेस पर मैं अपने दर्शकों को दिखा चुका हूं, अंदर सब कुछ सेफ सिक्योर नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहां पर मौजूद है और अब किसी भी क्षण हमारे इन एस्ट्रोनॉट्स को, हमारे शुभांशु शुक्ला को, भारत के इस लाल को बाहर निकाला जा सकता है। प्लीज आप मुझे बताइएगा, अगर आप मुझे समझा पाए, दर्शकों को समझा पाए, बहुत यूथ हमें देख रहा है इस वक्त, ये जीरो ग्रेविटी से वापस ग्रेविटी में आना कितना असर, कितना टेम्परामेंट इसके लिए जरूरत होता है, कितना चेंज महसूस होता है? मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि
जब भी हम लोग कभी जब पानी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि है ना, हम अपने भार में जो है अपने खुद के वेट में काफी डिफरेंस फील करते हैं। तो इसी तरह का जो कुछ अनुभव इन्हें भी होता है, क्योंकि जब ये जीरो ग्रेविटी पे जाते हैं तो अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरह का भार नहीं फील होता है। और जैसे ही जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एक प्रेशर एटमॉस्फेयर का भी होता है और ग्रेविटी का भी होता है। तो उसकी वजह से हम वेट फील करते हैं, हर चीज का एक वेट होता है, वो ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर की वजह से। तो वही एक जो चेंज है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेस में जो है वो जीरो ग्रेविटी होती है और यहाँ पर हम लोग काफी मतलब प्रेशर फील करते हैं। तो वो एक डेफिनेटली उन्हें काफी टाइम लगेगा उस चीज को रिकवर करने में। और उसी के लिए उनको क्वारंटीन भी रखा जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी देखिए सारे चैलेंजेस को पार करके मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दूं जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, देखिए किसी भी क्षण किसी भी वक्त जिस तस्वीर का इंतजार हिंदुस्तान कर रहा है, जिस तस्वीर का इंतजार भारत कर रहा है, किसी भी क्षण वो तस्वीरें आ चुकी हैं। अंदर सब कुछ ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। जो एक झलक आई थी अंदर, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशन पर हैं, आप जानिए इस वक्त जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी पर आना, अभी वो बहुत ज्यादा मूव भी नहीं कर सकते, ये भी आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो नीचे उतरे तो खुद चलकर बाहर आ जाएंगे, नहीं। अभी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो आप देख रहे हैं यहां पर। अधिकारी तो है ही, टीम मेंबर्स तो है ही, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है। और अब एक एक करके जो तमाम पैरामीटर्स हैं, अंदर से जो पॉजिटिव सिग्नल आए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी है। रचना जी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। रचना जी, ये जो पूरी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, कितना वक्त और कितना इंतजार और, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, मेरे ख्याल से आप अमेरिका में हैं, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि एक झलक तो दिखे शुभांशु की, एक झलक तो दिखे हमारे एस्ट्रोनॉट्स की। जी, अभी जैसा लग रहा है कि अगले 5-10 मिनट में ही बाहर आ जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स। तो बहुत ही जल्दी ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये कितना चैलेंजिंग होता है रचना जी, प्लीज मुझे एक चीज और बता दीजिए, मुझे प्लीज आप ये बताइए रचना, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं। मैं अभी ये सोच रहा था कि देखिए एटमॉस्फेयर में कैप्सूल वापस आता है, वो सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। ठीक है। तो जो वायुमंडल है उसी के कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है, और जो पूरी इतनी गति है इसकी हजारों किलोमीटर की, वो पूरी गति जो है वो वायुमंडल के फ्रिक्शन के कारण ही कम होती है। ठीक है। तो उससे इतनी जो हीट पैदा होती है उसके वजह से सिर्फ हीट ही नहीं, फिर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी हो जाता है। तो आप कैप्सूल के साथ आप संपर्क नहीं कर पाते हैं कुछ मिनटों के लिए। ठीक है। तो ये सब काफी क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। परफेक्ट, ये क्रिटिकल स्टेज है और जाने से ज्यादा मुझे लगता है वापस आना चैलेंजिंग होता है। मेरे साथ स्टूडियो में चमोली जी तो हैं ही, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप भी है। अनूप, ये विजुअल्स देखिए, बड़ी तस्वीरें आ चुकी है अनूप। बिल्कुल, ये बिल्कुल। पेटी विटसन बाहर आ चुकी है, ये जो कमांडर है। बिल्कुल, कमांडर एक एक करके तमाम लोग अब निकलते हुए बाहर। इंतजार शुभांशु का है, क्योंकि देश गर्व कर रहा है। शुभांशु कब बाहर आएंगे, ये सबसे बड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जो पूरी दुनिया देखना चाह रही थी रोहित, वो तस्वीरें सामने आ रही है। और ये ऐतिहासिक लम्हे के साक्षी हम सब बन रहे हैं। बिल्कुल। भारत एक्सप्रेस जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक बन रहे हैं। गेट खुल चुका है, पेटी बाहर आ चुकी है, एक एक करके जो अंदर पूरे प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद एक एक करके चारों एक बार आ चुकी है, पेटी बाहर आ चुकी है। इंतजार है इस हेड से अब कौन निकलेगा। अनुज, आपने पेटी को देखा, मुस्कुरा रही थी, और ऐसे ही देखिए शुभांशु भी बाहर आएंगे। उनके चेहरे पे भी खुशी होगी। देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। एक एक करके जो 3 और जो लोग हैं वो बाहर आएंगे। पैटी जो कमांडर थी, पायलट का इंतजार है, जो दूसरे और लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं वो भी बाहर आने वाले हैं। एक एक करके इंतजार किया गया, अब बाहर आने की बारी आई। पैटी बाहर आई है क्योंकि एक बकायदा प्रोसेस है रोहित। प्रोसेस के तहत डॉक्टर्स अंदर जाते हैं, चेक करते हैं सब कुछ ठीक है नहीं है, उसके बाद सहारे से उनको अंदर लाया, अंदर से बाहर। जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी में आना, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो खुद चलकर आ जाएंगे, सहारे की जरूरत है। लेकिन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आंखों की चमक जो है वो इस वक्त इसी दरवाजे पर है। अनूप, वो चाह रहे हैं, मुझे लगता है अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा, मुझे लगता है पायलट के तौर पर उनको जिम्मेदारी थी तो शायद वही आए। शुभांशु आएंगे, मुझे भी उम्मीद यही है कि शुभांशु आएंगे। इंतजार पूरी दुनिया को है। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देखिए। अब दूसरे नंबर पर कौन आता है, मैं और रोहित तो यही कह रहे हैं कि शुभांशु आएंगे। कौन आएगा अभी हम लोग देखेंगे ये, लेकिन ये चमत्कार विज्ञान अब कहां से कहां पहुंच रहा है और भारत कहां पहुंच रहा है रोहित, ये सबसे बड़ी मिसाल इस बार। भारत कहां पहुंच चुका है, आने वाले दशकों में कहां पहुंचेगा, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह चुके हैं अगली एंट्री भी होने वाली है। लेकिन
देखिए हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि शुभांशु सेफ हो, पूरी टीम के तौर पर वो यहां वहां पर मौजूद थे, पूरी टीम सेफ है, ऐसे इंडिकेशंस आए हैं। अब आप देखिए एक और चेहरा बाहर आ रहा है, एक और चेहरा बाहर आ रहा है। देखिए दूसरी तस्वीर, दूसरा एस्ट्रोनॉट कौन होगा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरों को आप देखिए, दूसरा एस्ट्रोनॉट जो है वो बाहर आता हुआ, कौन है ये आप जरा समझिएगा। देखिए देखिए और इंतजार है, और शुभांशु ये स्माइल आ गए, बिल्कुल बाहर आ गए। ये स्माइल जो है ना, ये करोड़ों डॉलर्स की स्माइल है। शुभांशु ये तस्वीर बड़ी तस्वीर है, आज की सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि भारत एक्सप्रेस पिछले कई घंटों से इन तस्वीरों का इंतजार कर रहा था। सब कुछ सेफ है। आई थिंक वी हैव टू कांग्रेचुलेट ईच अदर। बिल्कुल रोहित, और दिल को सुकून मिल रहा है। भारत का बेटा, लखनऊ का लाल अंतरिक्ष में कमाल करके आया है, अंतरिक्ष नाप कर लौट आया है। और अब भारत जो है, अगर हम स्पेस साइंस की बात करें, बहुत आगे जाने वाला है। एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए, और सुरक्षित भी हैं, भगवान का शुक्र है। सब सेफ है, सब सेफ है। वो कॉन्फिडेंस चाल में नजर आ रहा है, और होना ही था। देखिए एक तो हर कोई तारीफे, दुआओं का सिलसिला, रिएक्शन। हाँ प्लीज, सब कृपा उन्हीं की है, बिल्कुल सब। हाँ, सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है। अरे नहीं तो अच्छा लग रहा है, बेटा जो है, बेटा वापस चला आया है, तो ये भावुक पल है भाई उसका, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। पूरी यात्रा कैसी रही सर? 18 दिन रहे वहाँ पर। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही, जैसा कि हाँ बात होती थी और लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है? अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। शुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। We are trying our best कि आप लोगों को पूरा वाइड मिले, और हम हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक लैंडिंग हो गई है, और आपने जो तस्वीर कह रही थी, जो आपको देखनी थी, अब वो आ भी गए और तस्वीर भी सामने आएगी। पहला क्या वर्ड कहेंगी अब जब वो पृथ्वी पर आ गए? जस्ट आप लोग खुद अलाइन कर लो, हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप खुद अलाइन कर लो। तो रिएक्शन, मीडिया वाले चाह रहे थे रिएक्शन। अब देखिए उन भावनाओं को तो हर कोई हिंदुस्तानी महसूस कर ही रहा है ना अनूप, और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आज जो बड़ी तस्वीर जिसका इंतजार था, वो बड़ी मुस्कान, करोड़ों डॉलर्स वाली मुस्कान जो थी ना शुभांशु की, यकीन मानिए मेरे मन में यही इमेज थी। देखिए माँ बाप बहुत भावुक क्षण होगा उनके लिए, 18 दिनों बाद, और उन्हें भी पता है कि जिस यात्रा पर उनके बेटे गए हुए हैं, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन बेटे के स्माइल देखकर आंखों से आंसू आ गए रोहित। और ये क्षण आप समझिए, करोड़ों के स्माइल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, करोड़ों के आंसू भी थे जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम, और करोड़ों ख्वाब भी हैं, खुद प्रधानमंत्री कह चुके, करोड़ों ख्वाब भी हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए आसमान की तरफ देखकर अनूप ये कह रहे हैं कि मैं भी बनूंगा एस्ट्रोनॉट, मैं भी बनूंगा एस्ट्रोनॉट। मैं जिक्र भी कर रहा था, राकेश शर्मा को हमने इतिहास में पढ़ा। बिल्कुल। अब हमारे बच्चे, मैं बोल रहा था अनूप जी, मैं ये बोल रहा था कि 41 साल पहले तो मैं था नहीं, लेकिन उस वक्त के क्या इमोशन रहे होंगे, आज मैं उनको महसूस कर पा रहा हूं। ये देखिए चौथे एस्ट्रोनॉट बाहर आते हुए, और इनकी स्माइल बहुत कुछ कह रही है। आप समझिए, खुशी इनकी ये बता रही है कि इन्होंने जो मिशन लेकर ये गए थे, देखिए चल नहीं पा रहे। ये बॉडी लैंग्वेज पर मैं कह रहा हूं कि सहारे के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। खुशी और अंदर से जो आत्मविश्वास है वो इनके चेहरे पर झलक रहा है। वाह वाह, तो एक बार हो जाए जय हिंद और जय विज्ञान। बिल्कुल, और हम उस परंपरा को भी मानते हैं, आस्था को भी मानते हैं। देखिए हम साइंस में तो हैं, चांद में पहुंचे, अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच गए हम, लेकिन यहाँ क्या पूजा पाठ यज्ञ हो रहे थे। हम दोनों तरफ रोहित, और मानते दोनों को हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारत की सनातन परंपरा, वो हमारी रूट्स है। भले ही रूट्स जमीन में है, लेकिन अब हमारे ख्वाब कहां तक है,
वो अब 7 समुंदर पार की तो बात पुरानी हो गई, अब तो आसमान के आसमान पार, स्पेस के स्पेस पार। और हमारे साथ चमोली जी भी हैं। चमोली सर, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूं। अगर मैं बोलूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैं क्या बहुत बड़ा ख्वाब देख रहा हूं अगर मैं इंडियन स्पेस स्टेशन कह रहा हूं तो, या बहुत दूर की कौड़ी में सोच रहा हूं? ड्रीम तो कर लूं ना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत की जिस हिसाब से गति है, स्पेस में एक्सप्लोर करने की जो गति है जी, उसको देखते हुए एक ना एक दिन आपका कथन बिल्कुल सत्य होने के कगार पे है। केक कटा है चमोली साहब, आप देखिए पिता कितने खुश हैं, माँ भाई बहन तमाम लोग, और केक काटा जा रहा है। ये आप क्षण आप समझ सकते हैं। अगर मैं खुद से जोड़कर देखूं, अगर मैं किसी का बेटा हूं, मैं कहीं जाऊं तो क्या होता होगा अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखकर। शुभांशु ने तो इतिहास रचा है। रोहित, मैं वही बात कह रहा हूं, राकेश शर्मा को हमने इतिहास में पढ़ा, और अब देखिएगा हमारे बच्चे शुभांशु को पढ़ेंगे इतिहास में। बिल्कुल सच बात है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और देखिए, मैं ये कह रहा हूं, एक्सट्रीम 4 मिशन जरूर यहां पर अकम्प्लिश हो गया होगा, लेकिन भारत जिस तरीके से स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ रहा है, इसरो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो हमारे बच्चों की आंखों में ख्वाब बार बार आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से देश का बच्चा इस दिशा में भी एक्सप्लोर करेगा, और सिर्फ बच्चा नहीं, अब तो अभिभावक भी करेंगे ना। बिल्कुल, पहले वो माहौल नहीं था, लेकिन गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल अब है। और शुभांशु बनना इतना आसान नहीं था रोहित, नहीं होगा। आप समझिए कितनी टफ ट्रेनिंग होगी। आपको पता होगा पानी के अंदर जबरन डाला जाता है, कितनी देर तक आप जिंदा रह सकते हैं। आप गर्मी झेलनी पड़ती है, कितनी गर्मी आप झेल सकते हैं। और मैंने जो पढ़ा, मैंने जो रिसर्च किया, उसमें यही मिली जानकारी कि शुभांशु जिस पोजीशन पर थे, जिस ट्रेनिंग को करके गए, वो आम आदमी से 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग। और आप समझ सकते हैं, आप इमोशंस को भी तो समझिए। आप 2 दिन के लिए फैमिली से दूर जाए तो आप कहते हैं मुझे होम सिकनेस हो रहा है। वो देखिए, अर्थ को छोड़कर वो आईएसएस में रह रहे हैं, अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो तस्वीर भी बता रहे हैं कि देखिए 84 में राकेश शर्मा ने भी यही बात कही थी कि आसमान से चांद से बहुत खूबसूरत दिख रहा है भारत सारा, जहां से हिंदुस्तान हमारा। आज भी वही बात शुभांशु भी कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने जब ये तस्वीर और वीडियो भेजी और कहा कि आज भी मैं यही कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन भारत ज्यादा आत्मविश्वासी दिख रहा है, निडर दिख रहा है, और बहुत सारे ऐसी बात जो गर्व से भर देती हैं। और यही गर्व वाली अनुभूति हम तमाम देशवासी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो है वो वापस आ गए हैं अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन से। सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव, और बहुत ही, भले ही सहारा लिया लेकिन चलते हुए नजर आ रहे थे। $1 मिलियन स्माइल थी शुभांशु के चेहरे पर। मेरे साथ डॉक्टर राम भी हैं, मेरे साथ रचना जी भी हैं। डॉक्टर राम, प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। अब तो राम जी की भी कृपा हो गई, सारी चीजें सेफ है, और $1 मिलियन स्माइल कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और ये स्माइल अब नाम नहीं रह गए शुभांशु शुक्ला, ये एक युग की शुरुआत कर चुके हैं शुभांशु शुक्ला। प्लीज करेक्ट मी डॉक्टर राम इफ आई एम रॉन्ग। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप निश्चित मानिए कि अगला जो प्रसारण होगा कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर, आप निश्चित मानेंगे उसमें पूरी तरह से जो ड्रैगन मॉड्यूल होगा भारत का बना होगा, उसमें जो जहाज के लोग जाएंगे भारतीय नौसेना के लोग जाएंगे, और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को वो निकाल कर लाएंगे। वैसे ये बात जरूर है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम इसलिए होने वाले हैं कि ये उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर गेन किया है कि जाते समय क्या क्या सावधानी होती है, वहाँ क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सोना पड़ता है, कैसे उठना पड़ता है, और जो सभी चीजें हमारे यहाँ पर संपूर्णतः 100% इंडियन ओरिजिन की बनेंगी, आत्मनिर्भर भारत की बनेंगी। और उनको लेकर हम जब अपना अंतरिक्ष यान वहां पर भेजेंगे, अपने अंतरिक्ष यात्री वहां भेजेंगे, तब कितनी खुशी का दिन होगा, उसकी कल्पना आज मेरे आंखों के सामने आ रही है। मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मैंने जितेंद्र सिंह को सुना था, सेंट्रल मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि देसी किट लेकर गए हैं शुभांशु, 7 एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जो लोहा था शुभांशु ने तो मनवा दिया, लेकिन उन देसी किट का भी लोहा पूरी विश्व मानेगी। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे डॉक्टर राम? या देशी किट में खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेथी और आपके मूंग की दाल की जो जर्मिनेशन किया है वो इम्पोर्टेंट है। प्लीज एक बार तस्वीरें में दिखा दो डॉक्टर राम, ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, क्योंकि राष्ट्र भारत आज इसी चेहरे को देखना चाह रहा है। उन्होंने स्विंग भी कर दिया, हाई भी कह दिया, स्माइल भी दे दी। तस्वीरें आपके सामने, तिरंगा आप देखिए, रोहित कंधे पे लगा तिरंगा, शान से मुस्कुराहट कुछ कह रही है। अब आप देखिए तिरंगा,
तिरंगा दिखे कंधे पे, भारत का तिरंगा कंधे पर शुभांशु लगाए हुए एक तिरंगा कंधे पर है, वो दिख गया। एक तिरंगा दिल में है, जो शायद दिखा नहीं, लेकिन हर कोई उस फीलिंग को महसूस कर रहा है। बिल्कुल, और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। अपने मिशन को सक्सेस करके शुभांशु वापस लौटे हैं। ये मुस्कान सिर्फ शुभांशु की नहीं, ये भारत की मुस्कान है। और भारत की मुस्कान आप देख पा रहे हैं कैसे शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए शुभांशु आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश को हाई फाई दे रहे हैं, पूरे देश को हाई फाई दे रहे हैं, क्योंकि शुभांशु भी जानते हैं कि 140 करोड़ भारतीय उनकी सफल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कई ऐसे माएं थी जो व्रत पर थी, कई जगहों पर अनुष्ठान हो रहे थे, इसलिए वो भी जानते हैं कि 140 करोड़ भारतीय इस चेहरे को देखना चाहते हैं, इस मुस्कान को देखना चाहते हैं, इस तिरंगे को देखना चाहते हैं। और आज के बाद आप यकीन मानिए, तमाम जो युवा, जो बच्चे हैं, वो शुभांशु बनने की कोशिश करेंगे। आप एरोस्पेस या फिर स्पेस साइंस में, मैं रोहित अगर गलत नहीं हूं तो अब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोगों का, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों से हम पूछा करते थे क्या, या हम जब बच्चे थे, क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, उसके आगे कुछ नहीं, डिब्बा गोल, पता ही नहीं। अभिभावकों को भी नहीं पता था, ऐसा माहौल नहीं था। और ऐसी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेफ माना जाता था क्या? लेकिन अब पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में भारत बता चुका है इसरो की ताकत क्या है। और शुभांशु शुक्ला, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत के हौसले यूं ही मजबूत नहीं है, हौसले यूं ही आसमान में उड़ नहीं रहे हैं। शुभांशु शुक्ला जैसे युवा, शुभांशु शुक्ला जैसे स्टूडेंट्स, शुभांशु शुक्ला जैसी फोर्स, एयरफोर्स हमारी पूरा हर वक्त तैयार कर रही है एक और शुभांशु शुक्ला को। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सीएम 4 फिनिश हो सकता है। यहां से भारत की जो अगली उड़ान है ना, उसकी बिगिनिंग है, की शुरुआत। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज बिगिनिंग। बिल्कुल, और ये नए युग की शुरुआत है। भारत अपना परचम लहरा रहा है, और ये उसकी एक तस्वीर, एक बानगी आप समझिए इसे। इसके बाद भारत कहां होगा आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अपना झंडा बुलंद कर दिया। रोहित, पहले क्या है, अलग अलग तरीकों से भारत को देखा जाता था कि स्पेस में जाएंगे, ये भारतीय स्पेस में जाएंगे। कैसे मजाक उड़ाया करते थे, चमोली सर भी जानते हैं, चमोली सर प्रोफेसर भी हैं, वो जानते हैं कि तस्वीरों किस तरीके से कार्टून्स के जरिए मजाक उड़ाया जाता था। कभी साइकिल पर मिसाइल दिखाते थे, कभी गाय के साथ कहते थे इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन अब ये तस्वीर बताने के लिए काफी, इसमें सिर्फ बैठकर नहीं गए, शुभांशु के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी पायलट की। बिल्कुल, तो ये बात भी समझिए कि कितनी बड़ी फ्लिप ये भारत के लिए है। बिल्कुल, और यही अनुभव जो है अब भारत को बहुत आगे लेकर जाने वाला है। पायलट तो थे, ग्रुप कैप्टन पायलट थे, मिग उड़ाया, सुखोई उड़ाई, और देखिए अब इस यान में बैठकर यहां भी वो पायलट बने। और अब आप ये भी मान ले रोहित कि आने वाले वक्त में अगर स्पेस स्टेशन की बात करें, अगर स्पेस साइंस की बात करें, तो पायलट भी शुभांशु होंगे, उसके भी वही उसको लीड करके आगे लेकर जाएंगे। एक्सपीरियंस उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल, इतना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, 18 दिन स्पेस में रहे हैं, सारी चीजों को समझा है, कहीं ना कहीं खुद एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर अब वो दूसरे बच्चों को भी तो एडवाइस करेंगे, अपने टीममेट्स को भी तो एडवाइस करेंगे। इसीलिए तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, भारत सरकार ने। आपको याद होगा, एक तस्वीर मुझे और मेरे जहन में आती है, शुभांशु के कांधों पर हाथ मार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तभी यह साफ हो गया था कि एक्सीएम 4 के लिए कौन जा रहा है, भारत से जाएगा शुभांशु शुक्ला। और साबित भी कर दिया अपने आप को, भारत को साबित कर दिया। मैं बोलूंगा खुद को शुभांशु ने भारत को साबित किया है। पूरे देश में, पूरे विश्व के पटल पर भारत अलग पहचान के साथ अब स्थापित हो गया। और ये सब कुछ इस भारत के लाल ने किया, लखनऊ के लाल ने किया है। और ये मुस्कान बता रही है वो जीत गया है अपने मिशन में, बहुत आगे आ गया है, और ये मिशन भारत को बहुत आगे लेकर जाएगा। मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए शुभांशु, नो डाउट। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि हम लोग उनके पेरेंट्स को भी, आप समझिए, एक तो अपने बच्चे को बनाना, इतना काबिल बनाना, फिर अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना कि आपको इस मिशन पर जाना है, आप जाइए। मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थे, वो भी इस क्षण में खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और नमन है उनके माता पिता को, जिनके त्याग से, जिनके सेक्रीफाइस से आज आप, मैं, डॉक्टर चमोली, राम सर, रचना जी जो हमारे कब से हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस पल के हम साक्षी बन पाए। हमें गौरव का मौका दिया है रोहित। सबसे बड़ी बात कि हम इतने आराम से, बेहतर तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि विश्व के पटल पे भारत कहां पहुंच गया है, ये सिर्फ इस शख्स की वजह से हुआ है। शुभांशु शुक्ला जी, भारत का वो लाल जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम आज कह सकते हैं कि स्पेस साइंस में भारत अपना मादा रखता है, और आने वाले टाइम में भारत की वैल्यू और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कहीं पर भी ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब तो स्पेस सेक्टर में भी इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन हम उनके माता पिता का जिक्र कर रहे थे, रिएक्शंस आए हैं माता पिता के, शुभांशु के, एक बार सुनिए जरा प्लीज। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे।
जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ? ये तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए ये देखो। हाँ, उस समय थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। लेकिन अब इस समय लगेगा मैम, तब तक आप बात लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से रही। सब अच्छे से हो गया, सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे बात? तो शुभ वापसी हो गई है शुभांशु शुक्ला के और मां बाप के रिएक्शन। रोहित, आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और आंसू निकले तो जरूर, लेकिन खुशी के आंसू थे। बेटा वापस आ गया, नया कीर्तिमान रच कर वापस आया है और सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, इतिहास बनाकर आया है। बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऊपर भी हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी एक अलग विजन है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में एक वक्त पे सरकारें नहीं करती होंगी ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमारा देश ने पिछले 15 सालों में 20 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा किसी खास सरकार ने, हर सरकार ने अपना अपना योगदान दिया। और इसरो ने एक के बाद एक कई प्लान्स रखे, उनको सेफली इवैक्यूएट भी किया, एग्जीक्यूट भी किया और कोई दिक्कत नहीं है। उसी वजह से आज भारत जहां पर है, आज 7 आसमान 7 समुंदर पार हर जगह भारत का डंका तो है ही, लेकिन अब आसमान में भी, स्पेस में भी तिरंगा शान से लहर रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। चमोली सर शायद कुछ बातों का जिक्र करना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा चमोली सर आप अपनी बात रखिए, कुछ बताना चाह रहे थे आप। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जिस समय 1984 में जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे जी, उस मोमेंट का भी मैं साक्षी था। उस छोटे से दूरदर्शन के स्क्रीन पर हमने उनका पूरा जो है स्पेस में जाने का प्रोसेस देखा। जब श्रीमती भारतीय प्रधानमंत्री जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि आपको ऊपर से भारत कैसा लगता है जी, तो उन्होंने सिंपल कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मोमेंट हमारे लिए ऐसा गर्व का मोमेंट था और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरी बार जब दूसरे भारतीय जब स्पेस मिशन पे गया है, मैं आज फिर से उसका साक्षी बनाऊं। तो वही भावात्मक कनेक्शन में अपना देख सकता हूं जो 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के टाइम पे हमारे पे था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो अब ये गगनयान मिशन है, जो कि एज पर प्लान 2027 में जो है प्लान है, उसमें 3 यात्रियों को ले जाने की बात हो रही है। उन 3 यात्रियों में से एक जो हमारे ये सुधांशु शुक्ला हैं, ये उसमें से वन ऑफ द प्रोबेबल्स है। इसीलिए इन पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है इसरो ने और इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि ये खुद जाके आए हैं ISS पे, तो ये हमारे इसरो को आगे की ट्रेनिंग के लिए और जो कैंडिडेट चूज करने हैं, बाकी 2 कैंडिडेट जो चूज करने हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके चूज करने के प्रोसेस के बारे में, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे, क्योंकि वहां से होकर आए हैं, क्योंकि और वहां से खुद इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, वहां कैसा है क्या है। ये माहौल शायद काम आएगा गगनयान के लिए, हमारा जो मिशन है। अगर डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक रिएक्शन चाहूंगा कि अब आगे का प्रोसेस क्या है। अब सकुशल बाहर आ गए हैं, क्वारंटीन का एक वक्त होता है मिनिमम 7 डेज, कितना दिन तक हो सकता है, कब एक प्रेस बकायदा कॉन्फ्रेंस की जाएगी? इनका जनरल चेकअप किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में इतने दिन रहने के बाद उसमें क्या प्रभाव हुआ। वो भी एक अपने आप में बड़ी क्रिटिकल स्टडी होती है। ये स्टडी के जो रिजल्ट होंगे वो आगे के यात्राओं के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो इससे ये होगा कि अब जो है शुभांशु शुक्ला इसरो के साथ मिलकर इस तरह का ड्रैगन का जो स्ट्रक्चर है किस तरह का होगा, क्या होगा, और ऊपर जाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग अंदर की पूरी, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ टेक्निकल ब्रांच, उन्होंने एमटेक किया हुआ है, तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो है कंप्यूटर में काफ़ी कुछ एक्सपर्ट हैं। हालांकि जब उनका चयन हुआ था 2006 में, आप निश्चित मानिएगा वो जो वहाँ पर अपना कारगिल का युद्ध हुआ था उससे प्रेरणा लेकर वो एनडीए में बैठे थे। और एनडीए में जब बैठे थे तो उनके माता पिता को पता भी नहीं था कि बच्चा एनडीए में बैठ गया, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद पता लगा। बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि के ये रहे और सर्वोच्च फाइटर पायलट रहे और 2000 आवर्स का इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और जितने भी अंतरिक्ष यात्री भविष्य के
बनने की उम्मीद में थे, कतार में थे, उनमें से ये सबसे अग्रणी थे जिनको मौका दिया गया है। और निश्चित रूप से अब हमारा जो गगनयान होगा और भारत स्पेस स्टेशन होगा, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट भूमिका आप लोगों की भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पर आप बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं। रचना जी भी मेरे साथ हैं, जुड़ी हुई है लाइव फ्रॉम अमेरिका। रचना जी, हमने राकेश जी को सुना था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अब हमने सुन लिया शुभांशु जी को, वो भी कह रहे हैं 41 साल हो गए अभी भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप भी अमेरिका में हैं, दिल तो आपका भी हिंदुस्तानी है। बहुत ही $1 मिलियन स्माइल के साथ, बहुत ही सेफली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए शुभांशु शुक्ला निकले हैं इस कैप्सूल से। अब आपका दिल क्या कह रहा है जो हिंदुस्तानी है? मैं तो अब चाहूंगी कि ये जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है ये आगे ऐसा ही बना रहे और इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आगे बढ़े स्पेस सेक्टर में। और इन्होंने जो सारी ट्रेनिंग पाई है ये सब इंडिया में भी आके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बने और इंडिया में एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन हो और हमारा गगनयान आगे जो मिशन है वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल हो। रचना जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि देखिए दुनिया भर के लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, एस्ट्रोनॉट जो मौका शुभांशु को मिला इसके लिए, उसमें से फॉर्म छटे होंगे, कई लोग बहुत उम्मीद के साथ होंगे, लेकिन शुभांशु ने खुद को साबित किया, अपने आप को बताया। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया में एक्सपेरिमेंट हो, ये हो, शुरुआत तो हो गई है, अब कहां देख रहे हैं भारत को? आप वहां बैठे जरूर है, लेकिन भारत आपको कहां दिख रहा है? भविष्य भारत का कहां दिख रहा है? अभी आगे तो चांद पर दिख रहा है। आगे अब चंद्रयान मिशन और होगा जहां से हम चंद्रयान के सैंपल रिटर्न मून के सैंपल्स लेकर आएंगे वापस। फिर आगे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसका भी प्लानिंग है इसरो का। तो भारत जो है अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में और मून पे हर जगह दिखेगा। वाह रचना जी वाह, कितने शालीनता के साथ बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया ना। रचना, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन आपने जिक्र किया, मैं तो ये चीजें चमोली सर से भी समझना चाहूंगा। चमोली सर, अभी जो जिक्र, क्योंकि आपने जब बात की मैं तभी आपसे सवाल, मेरे मन में सवाल आ चुका था। चमोली सर, आपने बताया, आपने उस वक्त भी देखा, 41 साल पहले भी आपने देखा, आज भी देखा, चीजें कितनी बदली है। प्लीज आप मुझे बता दीजिए चीजें कितनी बदली हैं, क्योंकि मैं तो ये जान रहा हूं, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मेरे जैसा अभिभावक भी, मेरे जैसा पेरेंट भी अपने बच्चे को अगर इस दिशा में बढ़ाना चाहे तो अब देश में वो माहौल है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। 1984 में जिस समय राकेश शर्मा जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, वो सिर्फ 8 दिन के लिए वहाँ पे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनको वापसी के बाद भी काफ़ी लंबा टाइम रिकवरी में लग गया। तो रिकवरी के बाद जो है, उसके बाद उनका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाया। लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आज भारत ने बहुत तरक्की की है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हो रहा है। भारत ने जो है इतनी ज़्यादा तरक्की की है स्पेस के मामले में, एक से एक मिशन आप देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई इसरो जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और हमको उसमें सफलता मिल रही है। तो उस दृष्टि से देखते हुए इसरो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में, जैसे मैंने कहा कि सुधांशु शुक्ला जी जब सेलेक्ट हुए तो इनके साथ 6 लोग और थे जिनको जो प्रोबेबल की लिस्ट में थे। अब आप ये सोचिए कि सुधांशु शुक्ला जी के साथ 6 लोगों ने भी उसी तरह की ट्रेनिंग की है। ये आने वाले 6 लोग जो है, भले ही बाकी 5 का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब देश में फोर्स भी पूरी तैयार हो रही है, एक फोर्स तैयार हो रही है। और जिस समय तक भारत अपने गगनयान मिशन के शुरू पर आएगा, गगनयान के स्टेज पर आएगा, उस समय तक आप देखेंगे कि बहुत सारा कुछ जो है हम इंडिजिनियसली यानी भारत में ही विकसित कर चुके होंगे, प्रिपेयर कर चुके होंगे। बहुत कुछ। बिल्कुल रोहित, और पता है मैंने देखा क्यूरियोसिटी भी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। कल मैं खुद रिसर्च कर रहा था, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने बताया शुभांशु शुक्ला के बारे में, तो वो उनकी ख्वाहिश ऐसी है कि मैं IAS बनूंगी, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट बनना है उसको। शुभांशु शुक्ला को लेकर जब मैंने सारी बात बता दी, तो ऐसी नई जनरेशन जो है अब शुभांशु को देखकर और आगे आने वाली है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ सुषमा जी भी हैं, वो इसरो में काम कर चुकी हैं, रिसर्च कर रही हैं और बहुत शानदार तरीके से बात करें। सुषमा जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, बहुत देर से आप पर आ नहीं पाया, लेकिन मैं क्या करूं, इंडियन हूं ना, भारतीय हूं ना, अपने इमोशंस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। सुषमा जी प्लीज आप आइए। इसरो एक के बाद एक नया कीर्तिमान रच रहा है।
मुझे तो लग रहा है अब जो देश का शिक्षा मंत्रालय है उसको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक कहावत हम क्या सुनते थे, अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। अब तो मुझे लग रहा है स्लैंग्स में आ जाना चाहिए, अब चांद दूर नहीं, मार्स दूर नहीं, जुपिटर दूर नहीं। सुषमा जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो काम किए हुए काफी साल हो गए, मैं 20 साल पहले काम करती थी। और उस समय से ही मैंने देखा है कि इसरो काफी सारे नए नए सैटेलाइट्स ऊपर छोड़ना और काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर करना, ये सारी कुछ चीजें काफी टाइम से चल रही हैं। तो बिहाइंड द सीन्स तो काम हो ही रहा है और उन सब चीजों का, एफर्ट्स का अब हमें जो है वो बाहरी तौर पर भी रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और प्रेजेंट गवर्नमेंट की है ना जो काफी सारी जो स्कीम्स निकली हैं और काफी सारे उन्होंने फंड्स रिलीज किए हैं इसरो के लिए, तो वो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इसरो को नई ऊंचाइयां देने वाला है। बिल्कुल, तो शुभांशु शुक्ला की शानदार वापसी हो गई और वापसी के साथ बहुत सारी उम्मीदें बढ़ गई है भारत को लेकर। स्पेस साइंस में भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया है। शुभांशु 18 दिन अंतरिक्ष में रहकर वापस आए हैं, सफल लैंडिंग हो गई है और उनकी स्माइल बहुत कुछ कह रहे थे कि भारत का भविष्य, अगर आप ये समझ ले अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत आगे भारत जाने वाला है, इस स्माइल के साथ इसी बात की गवाही दी जा रही है। हमारे मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चमोली जी हमारे साथ हैं और सुषमा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमोली सर खुद प्रोफेसर हैं, चमोली जी आपके पास आऊंगा। ये स्माइल बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अब क्या प्रोसेस होगा? क्वारंटीन का वक्त है, कितना वक्त लग सकता है वहां के गुरुत्वाकर्षण और यहां वापस आने के बाद एटमॉस्फेयर में खुद को ढालने में? जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से आता है तो वो सबसे पहले उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट के ऊपर गया है और कितना टाइम वहाँ रह करके आया है, और उसके बेस्ड उनका क्वारंटाइन पीरियड डिसाइड होता है। जैसे सुधांशु जी 18 दिन के लिए जो है स्पेस में रहे थे जी, तो उन पे इम्पैक्ट कम होने की मतलब जो है प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए उनका क्वारंटाइन पीरियड अभी जैसा हम लोगों ने समझा है और हम लोगों को जो जानकारी है वो 1 हफ्ते का क्वारंटाइन पीरियड होगा। उस क्वारंटाइन पीरियड में वो देखा जाएगा कि वो कितना अपने को खुद सपोर्ट, उनकी बॉडी खुद अपने आप को सपोर्ट करती है और कितनी जल्दी जो है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने को फ्री महसूस करते हैं। तो जैसे ही ये क्वारंटाइन पीरियड, अगर बाई चांस उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए तो उनको ज़्यादा टाइम भी दिया जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर। जैसा कि हम उनको देख रहे हैं अभी जो आपने विजुअल दिखाए हैं उसमें वो काफ़ी अच्छी स्टेट में लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से 1 हफ्ते का जो प्रोटोकॉल के तहत जो क्वारंटाइन पीरियड डिसाइड किया है, उस क्वारंटाइन पीरियड में वो स्वस्थ हो जाने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ सुषमा जी भी हैं। सुषमा जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त भारत के लिए गर्व का पल है, बहुत गौरव का क्षण है। और अगर मैं कहूं कि हम शुरुआत कर रहे हैं नए युग की, भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है शुभांशु के जरिए, और लीड भी शुभांशु ही करेंगे, तो गलत नहीं होगा शायद? बिल्कुल जी, बिल्कुल। काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, काफी तेजी से डेवलपमेंट्स और काफी नए प्रोजेक्ट्स भी है ना आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई बिल्कुल भी मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में हम हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट्स और खुद के पायलट्स जो हैं वो स्पेस में भेजेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि अब शुभांशु की वापसी हो गई है, आने वाले 5 सालों में भारत कहां होगा स्पेस साइंस की दुनिया में? स्पेस साइंस की दुनिया में ये अमेरिका, रूस और चीन से ज्यादा टक्कर लेगा और ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। अभी आदित्य L1 का जो डेटा आ रहा है बहुत एनकरेजिंग आ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय चंद्रयान का जो डेटा हमारे पास है वो दुनिया में कई लोगों के पास नहीं है। और वहाँ पर अब हमारा जो अगला मिशन होगा साउथ की तरफ, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे वहाँ पर अपना एक परमानेंट ठिया बनाने के लिए, एक स्टेशन बनाने के लिए। उसकी भी डिजाइनिंग चालू हो गई है कि वहाँ जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और वहाँ अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। इन सब दिशाओं में अलग अलग सेक्टर्स में हमारे जो है साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल सही बात आपने कही, और युग की शुरुआत जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि शुभांशु के जरिए एक बड़ी जीत मिली है भारत को स्पेस साइंस में अपना भविष्य बनाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उम्मीद यही है कि भारत
बहुत जल्द उन ऊंचाइयों को छुएगा जहां तक आज भारत नहीं पहुंचा है और स्पेस साइंस में नया कीर्तिमान भी गढ़ेगा।